ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਬਰਲ ਟੀਵੀ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤਦ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਭਾੜਾ ਵੱਧਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਲਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1966 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਾਲਜ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖੁਦ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਤੇ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਕਾਲਜ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਤੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਸੋਸ ਹੋਰ ਕੀ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਹਮਲਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਬੰਦ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਬੰਦ, ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਚੱਕ ਕੇ ਜਲੰਧਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੈਸਕ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ
पंजाब के मुख्य मंत्री बोल रहे हैं सैकटरीएट दे विच, पंजाब की विधान सभा दे विच सैशन चल रहा है, उसकी खबर पहला जलंधर जाऊगी, जलंधर स्क्रिप्ट लिखी जाऊगी, जलंधर खबर एडिट होगी, जलंधर खबर तैयार होगी, प्रूफ रीडिंग होगी, तो पढ़न लई एंकर असीं इत्थे बुला के पढ़ा लांगे। ये कहना चाहुंदे तुसीं, जदों कि हकीकत यह आ कि हिसार नूं चंडीगढ़ लिया के यह किया गया कि भाई चंडीगढ़ ते हिंदी का दबदबा वध जाए। जे तुसीं ये जवाब दिंदे हो कि नहीं जी हरेक सूबे का जिवें पंजाब का जी सेंटर जलंधर है, इस तरह फिर हरियाणे का तो रोहतक है, फिर हिसार वाला रोहतक भेजना सी ना। ते पर हरेक सूबे की राजधानी तो ही वह बुलेटिन चलता है, खास करके जिहड़ा जिथे सरकार है, जिथे सैकटरीएट है, जिथे साडी विधान सभा है, उत्थे दे बुलेटिन तो कदे बंदे नहीं हुए, कदे भी किसी भी सूबे च हाथ मार के देख लो। तो फिर चाहे प्रसार भारती है, चाहे आकाशवाणी है, चाहे दूरदर्शन है, उत्थों पंजाबी बुलेटिन बंद करने तो उन्होंने स्टाफ मुलाजमान को यह कहना कि जां तां बोरी बिस्तरा बन लो या जलंधर चले जाओ। ये पिछे की शरारत सियासत है। उस तरह की शरारत या सियासत अज इस पंजाब यूनिवर्सिटी वाले मामले ते आके खड़ी हुई कि सिंडीकेट ने किहदे कहते, किहदे इशारे ते, किहदी चाल च आके या किहदे दबाव च आके खेड रचाई। पर जिद्दां ही आवाज़ उठी, चाहे वह राजनीतिक धिरां वल्लों, चाहे समाजिक धिरां वल्लों, चाहे मां बोली पंजाबी नूं परनाए हुए नुमाइंदियां वल्लों, उन्होंने संगठनों वल्लों, चाहे लेखक सभावां वल्लों है, चाहे बुद्धिजीवी संगठनों वल्लों, चाहे विद्यार्थी संगठन खुल के नितर के सामने आए, जिन्हां च हरियाणे के विद्यार्थी भी खुल के नाल आए पंजाब के विद्यार्थियों के कि धक्का। तो उस तो बाद देर रात एक खबर असीं तुहानूं दस रहे हैं कि बकायदा तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि नहीं होण देंगे, चिंता ना करो, पंजाबी हूबहू लागू रहेगी, लाजमी विषय वजों पढ़ाई जाती रहेगी। ये उन्होंने भरोसा दवाया। तो आने वाले समय सिंडीकेट का जोड़ा फैसला है उसनूं दुरुस्त करने का भी वादा किया। तो फिर सैनट की बैठक के विच कहंदे इसनूं दोबारा पक्की मोहर भी लावांगे, पर गौर रखने की लोड़ है। ये हमला बार बार हुंदा है, तो हमला हुण वो धिरां कर रहीआं जिहड़ियां कहंदियां एक देश एक भाषा, एक देश एक टैक्स, एक देश एक रंग, एक देश एक खाना, एक देश एक लीडर। सो ये मुल्क सूबਿਆਂ ਤੇ आधारित है, ये मुल्क भाषावां ते आधारित है, ये मुल्क ਵੱਖ-ਵੱਖ सभ्याचारां ते आधारित है। सो उस मुल्क की बनतर नूं जेकर कोई भाषा के नां ते, धर्म के नां ते, जात के नां ते, रंग के नां ते, खाने के नां ते तोड़न की, खंडित करने की कोशिश करूगा तो फिर आवाज़ उठूगी। उस विचों ये शरारत पंजाबी के खिलाफ भी लग रही है कि एक देश एक भाषा, एक देश एक टैक्स, एक देश एक रंग, एक देश एक सभ्याचार, एक देश एक नेता। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਰਮੀ ਇਹ सियासत ਤੇ गौर रखने की लोड़ है। सो बेशक पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बीबी ने हामी भरी है जी खुद पंजाबी विरसे चों आउंदी है, पंजाबी परिवार चों आउंदी है। तो वो भरोसे के नाते आस है कि आउंदे 2-3 दिनों के मसला बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा और मुड़ के पंजाब के चाहे 200 कॉलेज ने, चाहे हरियाणे के 100 के करीब कॉलेज ने, तो चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना कैंपस है, चाहे चंडीगढ़ च इन्होंने कॉलेज ने, उन्होंने पंजाबी नूं लाजमी विषय वजों पढ़ाया जाता रहेगा ग्रैजुएशन वजों। जेकर ये कोई छेड़खानी हुई तो एक खबर फिर सामने आएगी, तो इस पर फिर रोष मुजाहरा भी होएगा, फिर कतरता होएगी, सरकार को फैसला वापस लेना पेगा। पर मसला प्रसार भारती, दूरदर्शन ते आकाशवाणी वाला भी बड़ा है, गौर भी करने की लोड़ है। चलो गौर थोड़ा जा सरकार के रद्दो बदल ते भी कर लीए। अचानक निज्जर होरां दा अस्तीफा, कहंदे जी जाना तो कटारू चक ने सी पर चला निज्जर गया। कि निज्जर की कुरबानी ने, निज्जर की बली ने, निज्जर के अस्तीफे ने, निज्जर की बधाई ने कटारू चक नूं रोक लिया, कटारू चक नूं बचा लिया, कटारू चक की कुर्सी बचा ली, जां सरकार कहंदे जिहदी लै गई लोई वह फिर की करूगा कोई। अगले कहंदे हुण तां असीं बशर्म हो गए, हुण की है चलण दो, कटारू चक विचे चलण दो। सो जिहड़े इस बशर्मी तक आ गए फिर उसका हल की है। सो इस मसले को लैके अजे भी लोगों को लगता सी कि अज जो 2 मंत्री नवे बनाए जा रहे हैं तो एक निज्जर गया, चलो दूआ कटारू चक नूं भी शायद तोड़ दें, पर नहीं जनाब। कि आने वाले समय या नहीं तोड़ना, ये सवाल तो जिऊं दा त्यों खड़ा। पर 2 मंत्री बन गए, बलकार सिंह होरी ते गुरमीत खुडियां होरी। बिल्कुल प्रकाश सिंह बादल नूं लंबी हल्के तो हराउण वाले गुरमीत खुडियां का नाम पहली कैबिनेट तो चलता है। जो मार्च के 10 मंत्री बनते हैं उन्होंने भी गुरमीत खुडियां का नाम होंदा है। जदों उस तो बाद मई च विजय सिंगला जाता है तो जुलाई के फिर दोबारा कैबिनेट का विस्तार होंदा जी। अमन अरोड़ा भी, जोड़े माजरा भी है ना, तो आ अनमोल गगन मान भी, इन्हां दी बारी आउंदी आ। तो उस समय भी चर्चा आउंदी है कि नहीं बई गुरमीत खुडियां पक्का। तो फिर उस तो बाद बलवीर होरां दी बारी आउंदी है, तद भी चर्चा चलती है। पर आखिर हुण बारी आई गुरमीत खुडियां की, चलो मंत्री बने। वैसे बनने लई तां अजे
प्रिंसीपल बुद्धराम होरी भी इधर कहते जी अपना बीबी बलजिंदर कौर प्रोफैसर उन्होंने भी ना चल रहा, पर बारी नहीं आई। हुण ये 2 मंत्री बने, उधर कटारू चक का बचाव हो गया, पर इधर कहते कुलदीप धालीवाल के खासे पर कुतर हो गए। कुलदीप धालीवाल मतलब मुख्य मंत्री भगवंत मान, वित्त मंत्री हरपाल चीमा, सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस ते उस तो बाद कुलदीप धालीवाल। ये 4 बंदे आम आदमी पार्टी की कैबिनेट चो सब तो वध स्क्रीन ते, सब तो वध मीडिया च, सब तो वध सोशल मीडिया च नज़र आते सी। ते कुलदीप धालीवाल ढोल बजा के कहते जी आ खाली करा लिया जमीनां, आ काम करता, पहलकदमी करती, तो अचानक उन्होंने पर कुतरन पिछे की सरकार उन्होंने काम तो खुश नहीं। जिवें निज्जर का जाना चर्चा है कि नहीं जी बलजिंदर हमदर्द के हक च आ गई सी जी, विजिलेंस की कार्रवाइयों का विरोध करते सी जी, है मीडिया के हक च बोल गए सी कि मीडिया ने धक्का हुंदा है, कि ये कारण बने ਜਾਂ होटल इंडस्ट्री का मामला बनया। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ इंडस्ट्री के नाल कोई पेच फसिया सी, उन्हां दी निर्माण ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, उन्हां दी पासिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ क्यों मसला बनया? कोई खेड़ ये है ਜਾਂ सचमुच बलजिंदर हमदर्द ते अजीत ते जंगे आजादी यादगार वाला मामला? उस तरह कुलदीप धालीवाल, जे कुलदीप धालीवाल का काम छाया सी मीडिया च, है सरकार मतलब कि पूरा गोगा गाउंदी सी, तो फिर अचानक कुलदीप धालीवाल के पर क्यों कुतरे? ये चर्चा खूब हो रही है। होया की है जनाब, क्यों है चर्चा? असल च की है जी कि 2 नवे मंत्री बने ने, तो वो जिमें आप गल की है गुरमीत खुडियाँ या बलकार सिंह होरां नूं लोकल वाड़ी महकमा दिता गया, जोड़ा पहला निज्जर होरां कोल सी, इंदरवीर सिंह निज्जर कोल, इसलिए वो मंत्री गए तो नवे आए, उन्होंने महकमा मिल गया, कोई चक्कर नहीं। इस तो बाद पार्लीमेंट्री अफेयर भी बलकार सिंह उन्होंने कोल आया, पर गुरमीत खुडियाँ कोल खेतीबाड़ी, किसान कल्याण है ते पशु पालन विभाग है ना, ते डेयरी विकास, मच्छी विभाग है, फूड प्रोसैसिंग बारे खासे बड़े नामी ग्रामी पंजाब के हवाले नाल, किसानी वाला मामला, खेतीबाड़ी वाला विभाग है ना, पशु पालन वाला विभाग है ना, डेयरी विकास, ये पंजाब के हवाले नाल, फूड प्रोसैसिंग, ये बड़े विभाग ने, अहम विभाग। तो वो गुरमीत खुडियाँ नूं मिले ने ते कुलदीप धालीवाल कोलों वापस आए ने। इसलिए कुलदीप धालीवाल तो ये विभाग लैने खेतीबाड़ी वाला, तो ये खूब चर्चा कि यदा मतलब की है जी, ये फेर बदल करके ओदा क्यों घटाया गया, वो पर क्यों कुतरे गए? ऐ नहीं। हाँ, जे हम आप देखिए गुरमीत मीथेर कोलों खेल ते नौजवान महकमा देख रहे सी, गुरमीत मीथेर है जिम्मेवारी, उन्होंने को वाटर, उन्होंने जिम्मेवारी वधाती, उन्होंने को वाटर रिसोर्स भी चला गया, माइनिंग भी चली गई है ना, साइंस टैक्नोलॉजी भी चली गई, वो इधर आ गए। सो इसलिए इधर दूसरे पासे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लालजीत भुल्लर का कद वधाता। लालजीत भुल्लर को हुण पेंडू विकास ते पंचायत राज मंत्राला, ये भी कुलदीप धालीवाल को सी। तो कुलदीप धालीवाल तो खेतीबाड़ी नाल संबंधित महकमे भी, डेयरी नाल संबंधित, पशुपालन नाल संबंधित महकमे भी, तो इधर कुलदीप धालीवाल तो जी पंचायत मंत्राला भी, खेतीबाड़ी ते पंचायत वर्गे 2 अहम विभाग कुलदीप धालीवाल तो वापस लैके एक नवे बने मंत्री गुरमीत खुडियाँ नूं देना, तो एक इधर लालजीत भुल्लर नूं देना। ये कोई इशारा है, कोई मतलब है? तो ये खूब चर्चा है जनाब कि क्यों पर कुतरे गए, तो उधर कौन बचा रहा है कटारू चक नूं, कि उरे वाले, कि हाईकमान वाले हैं, जां कोई होर धिर, ते बचाउण दा कारण की है? कोई राज है, कोई ओला है जां सचमुच सरकार नूं लगदा है कि जे हटाया तो ज़्यादा बदनामी होगी, चलन दिओ आई भुल जाणगे लोग। सो कटारू चक दा बचाव ते कुलदीप धालीवाल दे पर कुतरन दी चर्चा खूब है जनाब। चलो जांदे जांदे गंगा भी नहा आई है। हरिद्वार भारत के नामी ग्रामी पहलवान, धीआं पुत्तर, मैडल जेतू खिडारी गंगा च कहते जी अपने असी जिहड़े मैडल ने वो जल प्रवाह करने, मैडल जल प्रवाह करने, बड़ा सवाल है। ये मैनू एक होर सवाल नज़र आता है पिछे, जेकर मैं उस दी गल करा तो थोड़े याद होना, दुनिया भर का नामी बॉक्सर, नामी चैंपियन बॉक्सर मुहम्मद अली, बिल्कुल ध्यान च होएगा। मुहम्मद अली दुनिया भर दे विच बख्यात खिडारी है, बॉक्सर है, तो 27 साल पहला वो रोम ओलंपिक दे विचों मैडल जित के आता है। तो जो मुहम्मद अली मैडल जित के आता है तो उस दौरान उत्थे दे रोम दे एक होटल दे विच जां एक कह लो रेस्टोरेंट दे विच जो दाखिल होने लगता है तो वो नस्ली वितकरा, रंग भेदभाव होंदा कि गोरे कहते इत्थे तू नहीं वड़ सकता, तेरे लिए नहीं है, तो उन्होंने बाहर कढ़ दिता जाता। तो रोसे वजों आउंदा होया
इस पीड़ ਨੂੰ महसूस करता होया रोम ओलंपिक च जित्या होया मैडल नदी 'ਚ सड़ दिंदा। जी हाँ, ਇਹ 27 साल वाला बरतांत की भारत के पहलवान, भारत ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ रुतबा है जिन्होंने पद्म श्री तक, खेल रत्न तक मिले ने, वो मैडल गंगा 'ਚ सिੱਟਣ जा रहे हैं, गंगा 'ਚ बहाउण जा रहे हैं। कि वही कहानी है? बिल्कुल ओलंपिक तो परतदा ते परतदा होया मुहम्मद अली वो गोल्ड मैडल जिहड़ी राह 'ਚ ਉਹੀ ਉਹ नदी पैंदी आ ਉਹ 'ਚ सड़ दिंदा। ਤੇ पर ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਟਲਾਂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਡਲ ਨਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਉਲਟਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਤੂੰ ਡਾਂਗ ਭਰਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਤੇ ਆਖਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਰਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਮੈਡਲ ਹੁਣ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ? ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਖੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ? ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣ ਹੈ ਇਹਦੀ कि भाई आह दृश्य है, ना उन्होंने मनाया गया, ना समझाया गया, ना विश्वास दवाया गया कि तुहानू इंसाफ मिलूगा। तो एक बंदे पिछे जिहदे खिलाफ 87 FIR होण उहनूं कड्ढण च, उस पर कार्रवाई करन च मुश्किल है। खिडारियों के लिए सारा कुछ है। कहते जी हुण तो कुड़ी भी नाबालग नहीं, जिन्हें शिकायत की है वह ताया कहता जी, वह चाचा कहता जी सबूत है नहीं जी साडे कोल, उधर का प्यो कहता भाई वह नाबालग। मैं कहना अज नाबालग नहीं भी, तो जेकर जिस दिन कारा वापरिया उस दिन जो नाबालग सी फिर अज वाला सवाल क्यों? तो जे नहीं भी नाबालग तां भी किसी धी नाल बच्ची नाल कुछ भी संभव है, तुसीं कर लोगे, ये सवाल है। सो इसलिए ये हड्डियां का विसर्जन है या मैडलों का विसर्जन है, ये गौर करने वाली गल है कि सरकारां नूं, सिस्टम नूं अपनी जमीर जगाउण दी लोड़ है। नहीं तो फिर ये जमीर मरियां हड्डियां लगदियां ने, वो मैडल नहीं लगते। सो वो तकलीफ बेशक रकेश टकैत के भरा नरेश टकैत ने जाके पोर्टली फड़ ली तो 5 दिन का अल्टीमेटम दिता है कि 5 दिनों कार्रवाई ना हुई तो असीं वड्डा अंदोलन भी छेड़ांगे। हो सकता है मैडल हुण राष्ट्रपति नूं जाके वापस कर दिते जाण। पर अफसोस जिन्हां ने तिरंगा दुनिया भर च चलाया होवे, जिन्हां ने भारत दे लई इन्ने मैडल जिते होण, जिन्हां नूं सरकारां पद्म श्री दे के, खेल रत्न दे के मान करदियां होण, जिहदी पिठ नरेंद्र मोदी थप्पत पाउंदे रहे होण, जिन्हां खिडारियां दे मैडल चुमदे रहे होण, जिन्हां दे ट्वीट करदे रहे होण, ते अज उन्हां दी हंझू देखने का भी समा नहीं, उन्होंने पीड़ सुनने का समा भी नहीं, उन्होंने हक च बोलने का भी समा नहीं, तो उन्होंने कहा तो कोई कार्रवाई करने का भी समा नहीं। तो फिर यही कहांगे जी कि वह मैडल नहीं सिस्टम दी हड्डियां सी जिहड़ियां गंगा च बहाउण गए पर अजे रोक लिया गई। चलो तुसीं देखते रहो लिबरल TV, लोगों की आवाज़ लोगों लई।